Hello students, how are you all? A very fresh morning to all of you. I am Fatima Kulsawala from Atmiya Green School Jadeshwar and I welcome you all back to our English grammar class. So students, we have already completed our chapter number 13, that is simple past and present perfect simple tense. So I hope that you have completed all the exercises in your textbook till now. So today we would be starting with our chapter number 14, that is talking about future, will, going to and shall. So students, we have already learnt about present tense, present continuous, simple past, past continuous and present perfect tense, right? So now we are going to learn about future tense. Future tense means we are going to talk about the things which have not happened yet, right? Which are going to happen. So let's see how we are going to describe the future. We describe the future by using three words, that is will, going to and shall. So we'll see into it. Before that, I request you all to open your grammar textbook, Adventures with Grammar and Composition, page number 67. Okay, so here we can see some conversation is going on between the friends. So let's just read it out. Yay! I have always wanted to go down under. Now that we are in Sydney, what shall we do? The Ashes are on. I will watch a cricket match at the Sydney Cricket Ground. No, GT. I want to see kangaroos. Do you think I'll see some in Sydney? Cricket, bleh. I will listen to the opera at the Sydney Opera House. So here there are 4 friends and all of them are thinking what they would be doing when they go to Sydney, Australia. Okay? यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रही है या फिर जो भी एक्टिविटीज़ इन चारों फ्रेंड्स को करनी है, राइट, वो अभी तक हुई नहीं है. सो दे आर प्लानिंग कि वो लोग क्या करेंगे. ठीक है. सो we'll first see the usage of will over here. Let's see the first topic, that is will. And when are we going to use will? We use will to tell people what we know or believe about the future. So हम कब यूज़ करने वाले हैं, कौन सी सिचुएशन है पहली जहाँ पर will यूज़ करना है? When we know or believe what is going to happen in the future. जब हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो हम जानते हैं कि वो फ्यूचर में होगा या जो हम ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं कि वो शायद हो सकता है. इट्स जस्ट आवर ओपिनियन. ठीक है. सबके लिए वो सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है या सबके लिए ऐसा नहीं होता है कि हाँ होगा ही ये चीज़ फ्यूचर में. लेकिन हम अगर ऐसा मानते हैं और हम ऐसा जानते हैं कि वो चीज़ फ्यूचर में होने वाला है, then we are going to use will. You can see here the sentence, in a decade man will live on Mars. That is his opinion. Okay, that man will live on Mars. Now here you can see they have used the word will to indicate future tense और उसके साथ जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में है. ठीक है. ये क्या हुआ, ओपिनियन, मतलब इसका बिलीफ है कि 10 साल के अंदर आदमी मार्स पर रहने लगेगा. जिस तरह से अभी बढ़ रहे आगे हम लोग, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव रीच्ड ऑन मार्स, राइट. दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन मार्स और नॉट. सो इन अ डिकेड हम इतने आगे बढ़ जाएंगे बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट मैन वुड बी एबल टू लिव ऑन मार्स. सो दैट इज़ जस्ट अ बिलीफ. अभी वो चीज़ होगी कि नहीं होगी वो नहीं मालूम है. ठीक है. It will not be an easy for a man to survive anywhere other than Earth. And that is like, I know that thing. It will not be easy for a man to survive anywhere other than Earth. अगर आदमी मार्स पर रहना चालू भी कर दे तब भी आदमी के लिए अर्थ के सिवा किसी और प्लानट पर रहना बहुत मुश्किल है. And that is something which I know. The first sentence you saw is the opinion. वी डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू हैपन और नॉट. ठीक है. वो फ्यूचर में होगा कि नहीं वो नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा हो सकता है. सो दैट इज़ अ बिलीफ. एंड द सेकेंड थिंग इज समथिंग विच आई नो, मतलब उसको मालूम है कि ये चीज़ होने वाली है.
and we also use will for the activities we decide to do at the moment we speak. Means when we are talking, at that time we decide कि इसके बाद हमें क्या करना है, right? For such activities we are going to use will. Mac, I just heard people saying they saw kangaroos. GT, really? Where? I will go there. So here you can see that is a conversation between two of them. One is Mac. अभी मैक ने क्या बोला कि उसने कुछ लोगों को सुना they saw kangaroos. I just heard people saying they saw kangaroos. और यही बात सुन के what did GT replied? Really, where? I will go there. So he decided to go there when he listened to Mac, right? And at that moment only, when he was speaking, at that moment only he decided that he wants to go there. So here हमने क्या use किया है? Will use किया है, ठीक है? So remember, we are going to use will to tell the people about what we know and what we believe it's going to happen in the future. Okay? बिलीफ और जानना अलग है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? बिलीफ मतलब वो मेरा बिलीफ है, आपका बिलीफ कुछ अलग हो सकता है, और नो मतलब यू नो इट वेरी वेल कि ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? और एक्टिविटीज़ जो हम उसी वक्त पर डिसाइड करते हैं बोलने के टाइम पे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि व्हेन मैक सेड दैट आई जस्ट हर्ड पीपल सेइंग दे सॉ कैंगरूज, जीटी रिप्लाइड रियली वेयर, आई विल गो देयर. सो when GT was speaking, at that time only he decided that he wants to go there. अभी तक वो गया नहीं है, लेकिन उसी वक्त उसने सोच लिया कि मुझे उधर जाना है, ठीक है? Now let's see the formation. Turn to page number 68. Okay. So what did Max said then? I will tell you. Take the first left, then walk for a kilometer and turn right. And there you will find the Sydney Zoo. You are sure to find kangaroos there. Haha. So जब GT ने बोला कि उसको वहाँ जाना है kangaroos देखने, right? So what did Max said? That I will tell you the way. मतलब वो उसको राह दिखाएगा कि क्या करना है. यू हैव टू टेक द फर्स्ट लेफ्ट, देन वॉक अ किलोमीटर एंड टर्न राइट. और फिर वहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? यू विल फाइंड द सिडनी जू. यू आर श्योर टू फाइंड कैंगरूज देयर एंड यू वुड बी एबल टू सी द कैंगरूज देयर. नाउ लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ यूजिंग विल इन द सेंटेंस टू मेक अ फ्यूचर टेंस. To use will in the statement, we use following form. And what is the form? Subject plus will plus verb in the base form. ठीक है? मतलब सबसे पहले क्या आएगा? वर्ब का एक्शन करने वाला, दैट मीन्स सब्जेक्ट. उसके बाद हम सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिख रहे हैं, इसीलिए हमें विल लिखना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द वर्ब इन द बेस फॉर्म. जैसे हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं वैसे ही हमें बेस फॉर्म में वर्ब यूज़ करना है, ठीक है? बेस फॉर्म इन ऑल द फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर किसी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? विल और उसका बेस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आई विल गो, ठीक है? तो यहाँ पे आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, और गो वर्ब है, और उसके साथ हमने क्या ऐड किया? विल. एंड व्हाट डज इट शो? इट शोज फ्यूचर टेंस. इन द सेम वे, इफ यू यूज यू along with you also, you will write you will go. Okay? वैसे ही we can write she will go. ठीक है? he will go, it will go, they will go. And the short form of will would be apostrophe double L. अगर मैं I लिखती हूँ I apostrophe double L, that means it's I will. If I write you
apostrophe double L, that is you will. Okay, so that is the short form of double L. And when we make a negative sentence we just have to add not. Okay, वो फॉर्मेशन सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. तो वहाँ पे क्या एडिशन हुआ, सिर्फ नॉट का एडिशन होगा. ठीक है, और ये याद रखना है, ये काफ़ी इजी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल ही यूज़ करना है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, subject plus will plus base verb in the base form. And when we make a negative sentence we would be using will not along with it, और will not का short form होता है won't. Okay, this is the short form of will not. Now when you form a question we bring will before the subject. जैसे हमने present tense में सीखा था कि हम लोग क्या करते हैं, डू और डस को आगे ला देते हैं, है ना, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको हमें आगे ले देना होता है. और अगर पास्ट टेंस है तो वी ब्रिंग डिड, दैट इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब, वी ब्रिंग इट अहेड, राइट, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं. वैसे ही जब हम फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट यू विल बी राइटिंग योर वर्ब विच इज़ इन द बेस फॉर्म, and then you have to put the question mark. Okay, so this is the formation of future tense questions. Will I go, will you go, will he she it go, will we go, or will they go. So I hope that you are clear with the usage of will. हमें will कब यूज़ करना है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हम जानते हैं, राइट, कि वो फ्यूचर में होने वाला है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमारे हिसाब से हो सकती है, मतलब हमारा जो बिलीफ है वो, या फिर हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हमने उसी वक्त डिसाइड की हुई है, राइट. व्हेन वी आर स्पीकिंग एट दैट टाइम ओनली वी डिसाइडेड कि हमें इसके बाद क्या करना है. सो फॉर सच एक्शंस वी आर गोइंग टू यूज़ will. And when we are forming the sentence in future tense we would be using this format, subject plus will plus base form. अगर नॉट ऐड करना है, नेगेटिव बनाना है तो विल के बाजू में नॉट ऐड करेंगे, और अगर क्वेश्चन बनाना है if you want to make a question at that time we would be bringing will first over here और सब्जेक्ट उसकी जगह पर, और फिर जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ए. इमेजिन वी सक्सीड in setting up a city on Mars. What do you think life will be like on Mars in 2050? How will children study? How will people live? Write 6 sentences using will or will not. So this is an activity which you are going to do it by yourself. Okay? This is a homework. You do it by yourself. आप सोचो कि अगर हम सिटी बनाने में सक्सेस मिलता है हमें मार्स के ऊपर, प्लैनेट मार्स, ओके, देन हाउ वुड बी द लाइफ ओवर देयर इन 2050 इफ़ वी आर लिविंग ऑन मार्स. और आपको उसी के बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिखने हैं एंड दैट वुड बी इन फ्यूचर टेंस. ओके, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू. सो वी वुड बी लर्निंग अबाउट द यूसेज ऑफ गोइंग टू फॉर फ्यूचर टेंस. So let's see when are we going to use this word going to for future. For that also we have 2 situations. Let's see the first one. We will use going to talk about the actions we know it will definitely happen in future. And we know they will happen because we can see a clear evidence at present. मतलब उन actions के बारे में जब हम बात करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि वो चीज़ definitely होने वाली है, और वो किस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड कोई प्रूफ या कोई एविडेंस अभी हमको प्रेजेंट में देखने को मिला है. उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ होगी ही होगी कल. ठीक है, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ओवर हियर. लुक एट द सैटेलाइट इमेज. अ हरिकेन इज गोइंग टू हिट आवर सिटी. सो वी आर सीइंग, हमने अभी प्रेजेंट में क्या देखा, सैटेलाइट इमेज देखी. ठीक है, और सैटेलाइट इमेज में क्या दिखा रहा है कि अ हरिकेन इज गोइंग टू हिट आवर सिटी. तो ये जो एविडेंस है, ये चीज़, ठीक है, ये जो है
वो प्रेजेंट में हमने देख ली है और उसी बेसिस पर हमने ये सेंटेंस बनाया है कि अ हरिकेन इज गोइंग टू हिट आवर सिटी. So this is something which will happen definitely in future because we have seen the image. Okay. And the second situation is for the actions we have decided to do in the future. That means when we are talking about the actions which are already planned out or decided that we are going to carry out in future. जो actions या जो plans हमने पहले से decide करके रखे हैं कि ये चीज़ हमें future में करनी है, ठीक है, वो वाली चीज़ों के लिए हम फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए गोइंग टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सील द विंडोज एंड डोर्स एंड देन वी आर गोइंग टू लीव द सिटी. वी आर गोइंग टू स्टे विथ आवर फ्रेंड्स. वी आर गोइंग टू रिटर्न आफ्टर हरिकेन हैज़ पास्ट. सो हियर ये जो सारी एक्टिविटीज़ है दे हैव डिसाइडेड कि हम करने ही वाले हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू सील द विंडोज एंड डोर्स, देन वी आर गोइंग टू लीव द सिटी. Then we are going to stay with our friends and we are going to return after hurricane has passed. So these all activities are decided or you can say pre-decided. ठीक है, तो जो activities pre-decided है about future के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हमें going to use करना है. ठीक है, so I hope कि आपको समझ में आ गया will कब use करना है और going to कब use करना है. ठीक है. Now let's see the formation of going to for future tense. So please look on the page 69. Now to use be going to in the statements we use the following form. अभी यहाँ पे be going to क्यों लिखा है? be going to, यहाँ पे be का मतलब क्या होगा? बी का मतलब होता है इज़, एम और आर. ठीक है, और वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे, इज़, एम एंड आर. ये तीन हमारे लिए किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स का. नाउ इफ़ यू सी द सेंटेंस ओवर हियर, आई एम, ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है. ओके, सी आई एम, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? इसका, आई एम का. उसके बाद है यू आर, राइट. सो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट इज फुल फॉर्म ऑफ यू प्लस आर. ओके, वी आर एंड दे आर. उसके बाद हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसके बाद यूज़ करेंगे गोइंग टू एंड देन वर्ब इन द बेस फॉर्म. Now you can just make out a sentence. If I write I going to sleep. So do you think this sentence is right? Well, no, it's not right because we need a helping verb over here. So along with I हमारे लिए कौन सा वाला helping verb काम करेगा? Am करेगा काम. ठीक है, so we will be writing I am going to sleep. You are going to sleep. We are going to sleep. They are going to sleep. Okay, so you need to remember that इसके अंदर जो be form यूज़ करेंगे हम लोग going to के साथ, वो हमारा present form होगा. और be का present form कौन सा है? It's is, am and are. और जैसे हमने आगे पढ़ा है, हम he, she and it, along with it we are going to use is, और I के साथ यूज़ करेंगे, we are going to use I am. And if we are talking about you, we and they, so along with it the helping verb would be are. ओके, यू सिंगुलर हो या प्लूरल, हम उसके साथ आर ही यूज़ करते हैं. और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वी जस्ट हैव टू नॉट ऐड नॉट अलॉन्ग विद द बी फॉर्म. ओके, जैसे कि आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप, यू आर नॉट गोइंग टू स्लीप, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्लीप. नाउ यू कैन सी हियर
कि यहाँ पे लिखा है ही अपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज़। वैसे ही शी इज़ एंड इट इज़ गोइंग टू स्लीप और इट इज़ नॉट गोइंग टू स्लीप। ओके, सो ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब हम गोइंग टू यूज़ करते हैं तब। ठीक है, और जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे कि हमने आगे देखा विल के अंदर, राइट, हमने क्या किया था, उसमें विल पहले लिया और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से वाले हैं, बी के फॉर्म, राइट, ये सारे बी के फॉर्म्स है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है, वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम फर्स्ट, after that we will write subject and then going to an verb. So let's see, if we are using, if our subject is I, ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब am, तो हमने am को पहले ले लिया, फिर आएगा I, उसके बाद आएगा going to, I am going, am I going to read, right? So ये read क्या हो गया आपका बेस फॉर्म, एम पहले आ जाएगा जो हेल्पिंग वर्ब है, आफ्टरवर्ड सब्जेक्ट, देन गोइंग टू एंड देन वर्ब। इन द सेम वे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट इज़ ही शी एंड इट, तो उसके लिए हमें पहले क्या यूज़ करना है, इज़, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट ही शी और इट एंड देन गोइंग टू प्लस वर्ब। वैसे ही अगर हम वी दे एंड यू की बात करते हैं, विच इज़ we is first person plural, they is third person plural and you is second person singular and plural, तो इन सब के लिए हम कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आर। तो हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हम आर को पहले लेंगे, देन वी विल राइट द सब्जेक्ट एंड देन गोइंग टू प्लस वर्ब। ओके, लेट्स सी वन सेंटेंस रिलेटेड टू आर। फॉर एग्जाम्पल, आर they going to jump? Okay, so यहाँ पर along with they I have used are, then going to and then the verb. Okay, so I hope that you are clear with the usage of will and going to. Okay, will कहाँ यूज़ करना है और वो फॉर्मेशन कैसे होता है उसका वो भी, और गोइंग टू कहाँ यूज़ होता है और उसका भी फॉर्मेशन। ओके, सो इट्स क्लियर। सो यू वुड बी डूइंग एक्सरसाइज ए एज आई टोल्ड यू, एंड एक्सरसाइज बी you need to match the column, read the situations in column A, based on that say what is going to happen and write your answers in the column B. Remember to use going to. आपको ये situation जो है ए वाले कॉलम में, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर सेंटेंस गोइंग टू यूज़ करके लिखना है, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ. I would be giving you the answers in the next video and we would be checking it, okay? Till then, take care.